جانی بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مانسون بارشوں کا چھٹے اسپیل کا آغاز ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کو بریک لگا دی۔ شہر کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 31 جولائی تک بارشیں جم کر برسیں گی۔ مونسون بارشوں کے چھٹے اسپیل کا آغاز ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی۔ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کو بریک لگا دی۔ شہر کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ، ماڈل ٹاؤن، قذافی اسٹیڈیم، شملہ پہاڑی، ڈیوس روڈ پر بارش ہوئی۔ شادرہ کچا جیل روڈ ڈیفنس میں بادل خوب برسے۔ کینچی غازی روڈ پنجاب سوسائٹی بھی بھیگ گئی۔ کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ، ماڈل ٹاؤن، قذافی اسٹیڈیم، شملہ پہاڑی، ڈیوس روڈ پر بارش ہوئی۔ شادرہ کچا جیل روڈ ڈیفنس میں بادل خوب برسے۔ کینچی غازی روڈ پنجاب سوسائٹی بھی بھیگ گئے۔ ماہرین نے آئندہ 48 گھنٹے بارش کے اعتبار سے اہم قرار دیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 31 جولائی تک بارشیں جم کر برسیں گی۔ 1-2 دن وقفے کے بعد 3-4 اگست کو بھی بارش ہوگی۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ شہر کے مختلف مقامات پر موسلادھار بارش، جس میں کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ، فیروز پور روڈ بھی گئے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، ڈیفنس روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ پیکو روڈ سے متصل سروس لین ڈوب گئی۔ خیابان جناح روڈ پر بارش کا پانی جمع، کچا جیل روڈ پر نکاسیاب کے ناقص انتظامات۔ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ فینس روڈ، غازی روڈ، پنجاب سوسائٹی، لالک جان، وطین چوک، بنگالی مارکیٹ، ڈیفنس موڑ پر بارشی پانی اکٹھا ہو گیا۔ فرسودہ سیوریج نظام کے باعث شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی۔ موسلادھار بارش کے باعث خیابان جناح روڈ اور اطراف میں بارشی پانی جمع ہو گیا۔ چوک میں کئی فٹ پانی جمع ہونے سے دکاندار اور رہائشی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد چوک کی یہی صورتحال ہوتی ہے، گھروں کو جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کچا جیل روڈ پر نکاسی آب کے ناقص انتظامات کے باعث کئی فٹ تک بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پیکو روڈ سے متصل سروس لین بھی پانی میں ڈوب گئی۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ لوگوں کی دکانوں میں بارش کا پانی جانے سے ان کے لیے کاروبار کرنا دشوار ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ بارش کے بعد پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کا لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ موسلادھار بارش کے بعد کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ اور فیروز پور روڈ بھی پانی میں ڈوب گئی۔ خیابان جناح روڈ پر بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا، جس کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت پاکستان منتقل۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی 2 سال کے لیے صدر ہوں گے۔ بھارت کے جیشا مدت پوری ہونے پر صدارت سے الگ ہو جائیں گے۔ اے سی سی کے اکتوبر-نومبر کے اجلاس میں باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ سرکاری محکموں کو پیڈا انٹرنشپ شروع کرنے کا حکم۔ ای بائک اسکیم میں مزید 10,000 بائک شامل کرنے کی منظوری۔ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ فنکاروں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم بنانے کی ہدایت۔ ہائر اور اسکول ایجوکیشن ای ٹرانسفر پالیسی بھی منظور۔ ہمت کارڈ کا وظیفہ 10,500 کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری محکموں کو پیڈ انٹرنشپ شروع کرنے کا حکم مل گیا۔ ای بائک اسکیم میں مزید 10,000 بائک شامل کرنے کی منظوری ہو گئی۔ ہمت کارڈ کا وظیفہ 10,500 کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی گئی۔ ہائر اور اسکول ایجوکیشن ای ٹرانسفر پالیسی کی منظوری دی گئی۔ چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کے تحت 2,000 طلباء کے لیے 3 ماہ کی انٹرنشپ کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں چیف منسٹر ڈسٹرکٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پروگرام لانچنگ کی منظوری دی گئی۔ ضابطہ فوجداری 1898 کے تحت دفعہ 144 میں ترمیم۔ ڈپٹی کمشنر 30 دن، ہوم سیکرٹری 90 دن اور کابینہ زیادہ مدت کے لیے دفعہ 144 لگا سکے گی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، معاونین خصوصی، چیف سیکرٹریز نے اجلاس میں شرکت کی۔ کم آمدن والے افراد کے لیے بڑی خوشخبری۔ اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے 10 ارب کا PC1 منظور۔ شہریوں کو سستے گھروں کی فراہمی اب ممکن ہو سکے گی۔ پنجاب حکومت آن لائن پورٹل بنائے گی، شہری اپنی کوائف کا اندراج کر سکیں گے۔ کم آمدن والے افراد کے لیے خوشخبری۔ پنجاب حکومت آسان اقساط پر گھر بنا کر دے گی۔ PND بورڈ نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے 10 ارب کا PC1 منظور کر لیا۔ اسکیم میں صرف کم آمدنی والے افراد ہی اپلائی کر سکیں گے۔ پنجاب حکومت شہریوں کے لیے آن لائن پورٹل بنائے گی۔ شہری آن لائن پورٹل پر اپنے کوائف کا اندراج کر سکیں گے۔ شہری گھروں کی تعمیر کے لیے حکومت سے بلا سود قرض بھی لے سکیں گے۔ بند روڈ کوریڈور کو تکمیل کرنے کی ڈیڈ لائن ختم۔ کانٹریکٹر کی ناقص پلاننگ اور سست روی تاخیر کا سبب بنی۔ کرش سٹون، بجری اور دیگر تعمیراتی سامان میں تاخیر بھی وجہ قرار۔
LGA ने मंसूबे की तकमील के लिए मजीद वक्त मांग लिया। हुकूमत ने मजीद 1.5 अरब के इजाफी फंड से रिलीज करने से इनकार कर दिया। LGA और मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली से पैकेज 2 का काम लटक गया। कॉन्ट्रैक्टर की नाकिस प्लानिंग, तामीराती सामान की अदम फराहमी और हुकूमत का मंसूबे के लिए मजीद फंड्स देने से इनकार। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा वक्त पर मुकम्मल ना हो सका। वजीर आला पंजाब की दी हुई बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे की पैकेज 2 की तकमील की 30 जुलाई की डेडलाइन गुजर गई। LDA ने मंसूबे की तकमील के लिए मजीद वक्त मांग लिया। पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर की नाकिस प्लानिंग और सुस्त रवि भी ताखीर का सबब बनी, जबकि मंसूबे के लिए क्रश स्टोन, बजरी और दीगर तामीराती सामान में ताखीर भी वजह बनी है। पैकेज 2 पर DG LDA ने रोजाना दौरा किया और काम की रफ्तार का जायजा लेते रहे। जराये के मुताबिक LDA ने मजीद 4 से 5 रोज का वक्त मांगा है। तामीराती सामान ना मिला तो मजीद वक्त दरकार हो सकता है। जराये के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने मंसूबे के मजीद 1.5 अरब के इजाफी फंड्स रिलीज करने से भी इनकार कर दिया। PC1 रिवाइज और एडमिन अप्रूवल रिवाइज कराए बगैर अदायगियां नहीं होंगी। पैकेज 1 का साबिक निगरान वजीर आला बरवक्त इफ्तिताह और ओपनिंग करवा कर गए थे। LDA और मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली से पैकेज 2 का काम लटक गया। नौजवान डॉक्टर्स के लिए मुलाजमत के मौक़ों में कमी, बेरोजगारी बढ़ने लगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मेडिकल अफसरान की भर्ती के लिए दरख्वास्तें वसूल। 900 सीटों के लिए 12,065 डॉक्टर्स अहल उम्मीदवार करार पाए। नौजवान डॉक्टर्स में बेरोजगारी की शरह में इजाफा होने लगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 900 मेडिकल अफसरान की मुस्तकिल भर्ती का अमल जारी है। मेडिकल अफसरान की 900 सीटों के लिए 12,065 उम्मीदवारान ने दरख्वास्तें जमा करवाई, जिसके मुताबिक मेडिकल अफसर की एक सीट के लिए 13 से ज्यादा डॉक्टर्स मुकाबले में हैं। पंजाब में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भरमार है। हर साल हजारों नए मेडिकल ग्रेजुएट्स की तैयारी के मुकाबले होते हैं, लेकिन मुलाजमत के मौके इंतहाई कम हैं। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में 25 अरब 59 करोड़ के घपले। अद्वियात की खरीदारी में 5 अरब 87 करोड़ की बेज़ाब्तियाँ पाई गईं। टैक्सेस की छूट, नॉन रिकवरी और मंजूरी के बगैर अदायगियों पर 16 अरब के अखराजात। 2 अरब 81 करोड़ की इजाफी अदायगियाँ की गई। कानून को नज़रअंदाज करके 4 अरब 80 करोड़ की खरीदारी की गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में 25 अरब 59 करोड़ की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में फ्रॉड, फंड्स की हेरा फेरी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। ऑडिटर जनरल ने माली साल 2023-24 और 22-23 की रिपोर्ट में बताया है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 2 अरब 81 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियाँ की गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में अद्वियात की खरीदारी में 5 अरब 87 करोड़ की माली बेज़ाब्तियाँ पाई गई। ह्यूमन रिसोर्सेज की मद में 9 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई। टैक्सेस की छूट, नॉन रिकवरी और हुकूमत की मंजूरी के बगैर 16 अरब के अखराजात किए गए। कॉन्ट्रैक्टर्स को टैक्स की छूट और नॉन रिकवरी पर 1 अरब 43 करोड़ का नुकसान खजाने को पहुंचाया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड ने गैर कानूनी तौर पर 45 करोड़ अलाउंसेस के मद में अदा किए हैं। पंजाब प्रोक्योरमेंट कानून को नजरअंदाज करके 4 अरब 80 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। लोकल परचेजर से गैर कानूनी तौर पर 45 करोड़ की अद्वियात खरीदी गई हैं। ड्राफ्ट के साथ रजिस्टर्ड ना होने वाली कंपनी से 2 करोड़ रुपए की अद्वियात भी खरीदी गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्टोर्स में 55 करोड़ की अद्वियात का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अस्पतालों में पार्किंग और कैंटीन के गैर कानूनी ठेके देकर खजाने को 22 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल से 60 लाख मालियत की अद्वियात चोरी हुई, मगर रिकवरी न हो सकी। अब आपको बताएं, स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। अदाकार सरदार कमाल को दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन मदनी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक इंतहाई दुख की खबर है लॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कि स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल, जो कि बतौर कॉमेडियन भी जो है वो थिएटर ड्रामों में काम करते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ टीवी शोज में भी वो बतौर कॉमेडियन जो है वो परफॉर्म करते थे। दिल का दौरा पड़ा उन्हें। दिल का दौरा जो है वो जानलेवा साबित हुआ। उन्हें जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले हैं। सरदार कमाल की जो नमाज जनाजा है उसके हवाले से अभी उनकी फैमिली से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि इनकी जो रिहाइश है वो फैसलाबाद में है और उनके कुछ करीबी अजीज भी जो है फैसलाबाद से ही हैं और सरदार कमाल का अपना ताल्लुक भी जो था वो फैसलाबाद से ही था और उनकी जो तदफीन है वो फैसलाबाद उनके आबाई इलाके में ही की जाएगी। जी
ठीक है जैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। बल्दिया उस्मा लाहौर का 16 अरब सरप्लस का सालाना बजट मंजूर। गैर तरक्याती बजट 12.5 अरब रखा गया। तनख्वाहों और पेंशन कीमत में 6.5 अरब मुख्तस किए गए। जारी तरक्याती मनसूबों की अदायगियों के लिए 2 अरब रखे गए। आमदन बढ़ाने के लिए बिल्डिंग प्लान फीस में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। बल्दिया उज़्मा लाहौर का 16 अरब रुपए सरप्लस का सालाना बजट मंजूर कर लिया गया। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की अदायगियों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। गैर तरक्याती बजट का हजम 12.5 अरब रुपए रखा गया है। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 6.5 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर के मुताबिक यूटिलिटी बिल्स की मद में 1.5 अरब रुपए की रकम रखी गई है। रेगुलेशन और दीगर फील्ड ऑपरेशनल गाड़ियों के लिए 50 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। सालाना तकरीबात के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। बल्दिया उज़्मा की आमदन बढ़ाने के लिए बिल्डिंग प्लान फीस बढ़ाने की मंजूरी दी गई। स्विमिंग पूल रजिस्ट्रेशन फीस में भी इजाफा किया गया है। हुकूमत पंजाब की बल्दिया उज़्मा के लिए ग्रांट में भी 40 करोड़ का इजाफा मुतवक्के है। हुकूमत पंजाब ने 1 अरब 10 करोड़ ग्रांट की खसूसी मंजूरी भी दी है। बल्दिया उज़्मा की तारीख में 30 साल बाद नई गाड़ियाँ शामिल हुई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा की मंजूरी के बाद बजट की कापी महकमा लोकल गवर्नमेंट को अरसाल कर दी गई। हुकूमती वादे फाइलों में दब गए 14,000 एजुकेटर्स AEOs मुस्तकिल के लिए ख्वार। 10 वर्षों में 50 से ज़ायद SSCs बगैर हुकूमती माली इमदाद वफात पा गए। कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की फैमिली माली मसाइल से दो चार। दूसरी जानिब असातिज़ा के तबादलों का एजेंडा काबीना कमेटी में शामिल ना करने पर गर्मी की छुट्टियों में तबादलों पर से पाबंदी उठाना मुश्किल हो गया। हुकूमती वादे वफा न हुए, 14,000 एजुकेटर्स AEOs मुस्तकिली के लिए ख्वार हो गए। 10 वर्षों में 50 से जायद SSEs बगैर हुकूमती माली इमदाद वफात पा गए। सूबाई सदर पैक्ट पंजाब का कहना है कि वफात पाने वाले कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की फैमिली माली मसाइल से दो चार हैं। साबिका हुकूमत ने भी 14,000 कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को वादों पर रखा। सदर पैक्ट लाहौर सैयद मुदस्सिर हुसैन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत भी वादों पर ही काम चला रही है। फरखंदा अमीन का कहना था कि वादों के बावजूद SSEs की मुस्तकिली के लिए कोई अमली काम नहीं हो सका। जनरल सेक्रेटरी PTU पंजाब मरियम चौधरी का कहना था कि वजीर तालीम मुस्तकिली के अपने वादा को पूरा करें। हुकूमत का असातिज़ा के साथ किया गया तबादलों का एक और वादा पूरा ना हो सका। स्कूल एजुकेशन काबीना कमेटी के इजलास में असातिज़ा के तबादलों की मंजूरी का एजेंडा रखने में नाकाम रहा। तबादलों का एजेंडा काबीना कमेटी में शामिल न करने पर गर्मी की छुट्टियों में तबादलों पर से पाबंदी उठाना मुश्किल हो गया। असातिज़ा का कहना है कि तबादलों पर से पाबंदी ना उठाई गई तो भरपूर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि तबादलों का एजेंडा शामिल ना होने के बावजूद तबादलों की मंजूरी ले ली जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब भर में असातिज़ा को इन सर्विस प्रमोशन देने के मामले पर DPI एलिमेंट्री पंजाब ने जून जुलाई में दी जाने वाली तमाम तरक्कियों का रिकॉर्ड मांग लिया। मरासले में कहा गया है कि एलिमेंट्री से सीनियर स्कूल टीचर कितने असातिज़ा प्रमोट हुए हैं। DPI की जानिब से कहा गया है कि असातिज़ा के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की तरक्कियों का डाटा भी फराहम किया जाए। तमाम तरक्कियों का रिकॉर्ड जुलाई के आखिर तक मुहैया ना किया गया तो कार्रवाई होगी। तमाम जेलों की बैरिक्स में लाइब्रेरियां बनाने का फैसला। हर लाइब्रेरी 400 से ज़ायद किताबों पर मुश्तमिल होगी। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने महकमा जेल को 6 अरब 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मिलने वाले बजट से जेलों का निज़ाम चलाया जाएगा। महकमा जेल खाना जात ने सूबे की तमाम जेलों की बैरकों में लाइब्रेरियां बनाने का फैसला किया है। हर जेल की हर बैरक में 400 से ज्यादा किताबों का रैक रखा जाएगा। लाइब्रेरियां चुगताई लैब के तावन से बनाई जाएंगी। चुगताई लैब के वफ्द ने कैंप जेल का दौरा किया और लाइब्रेरियों के क्याम के हवाले से जायजा लिया। महकमा दाखिला के जराये के मुताबिक मंसूबे पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। कैदी इन किताबों से मुस्तफीद हो सकेंगे। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने जेल खाना जात को 6 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने जेलों को ऑपरेशनल अखराजात, कैदियों के खाने, पेट्रोल, तनख्वाहों और बिजली और गैस के बिल्स और दीगर अखराजात के लिए ये बजट जारी किया है। इस बजट से जेलों का निजाम चलाया जाएगा। जेलों की गाड़ियों का खर्चा भी इस बजट में शामिल है। धोबीघाट चौक GT रोड पर नसब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। टोके वाली गली मुल्तान रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट भी 5 साल से नाकारा। प्लांट की खराबी के बायस इलाके में साफ पानी की किल्लत का सामना है, जबकि हरबंसपुरा रानी गांव में मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी 6 माह से गैर फ़आल है।
शहर के मुतअद्दिद इलाकों में लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नकारा हो गए, जिससे शहरियों को पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। धोबी घाट चौक जीटी रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया। शिकायत के बावजूद इंतजामिया प्लांट फाल ना कर सकी। मकीनों का कहना है कि कई माह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर भी तब्दील नहीं किए गए और जब फिल्ट्रेशन प्लांट चलता है तो बदबूदार और नाकाबिले इस्तेमाल पानी आता है। इतनी देर का लगा हुआ है, हमको एक दिन भी पानी नहीं मिला इसका। ये इन्होंने 3-4 ज्वाइंट किए हुए हैं इधर से, और पानी किधर को देते हैं किधर को नहीं देते, अगर तो चलता ही नहीं है, चलाते ही नहीं है। सुल्तान रोड टोके वाली गली का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 5 साल से गैर फाल है। नलके नशे के आदी अफराद उतार कर ले गए। इलाका मकीनों का कहना है कि मसला हल नहीं किया जा रहा। घरों में गंदा पानी आता है। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील की है। गंद फेंकना शुरू कर दिया, हर शय फेंकनी शुरू कर दिया। इसका मीटर भी उतर गया, बत्ती वाला, मोटरें भी उतरी हुई हैं, ये चलता नहीं। जो वाम है इधर की उन लोगों को तंगी है। हरबंसपुरा रानी गांव में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह गुजर जाने के बावजूद भी गैर फाल है। मकीनों का कहना है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में मशीनरी मौजूद नहीं। मुतअद्दिद बार मुतलका महकमे को दरख्वास्त दी, लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी ठीक नहीं की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर बोर्ड में मैट्रिक में नुमायां पोजीशंस हासिल करने वाले तुलबा ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने तुलबा को शाबाश दी और मेहनत जारी रखने की तलकीन की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम दिया। गवर्नर ने बच्चों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सरदार सलीम हैदर का कहना था कि इसी तरह मेहनत जारी रखें। डेंगू की टाउन रिस्पॉन्स एमरजेंसी कमेटी का इजलास सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सदारत की। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन डॉक्टर अनम फातिमा ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, घरों से लार्वा मिलने पर FIR दर्ज करवाई जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत शालीमार टाउन में डेंगू की टाउन रिस्पॉन्स एमरजेंसी कमेटी का इजलास हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन डॉक्टर अनम फातिमा ने टाउन में डेंगू की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, इंसदाद डेंगू के लिए शहरियों को ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत ट्रैफिक की रवानी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया कि ट्रैफिक की रवानी के लिए टीपा शहर की रोड से गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाने के लिए हफ्ते में 3 दिन ऑपरेशन कर रहा है। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि सड़कों से मिसिंग और वाजिया साइन बोर्ड्स की तनसीब के लिए टीपा वर्किंग को तेज़ करें। माल रोड से तमाम गैर कानूनी और इजाफी साइन बोर्ड्स को हटा दिया गया है। केनाल रोड पर एक ही पैटर्न पर तमाम साइन बोर्ड्स लगाने का फैसला किया गया है। बतदरीज शहर के तमाम साइन बोर्ड यकसा होंगे। ट्रैफिक रुकावट के 5 पॉइंट्स की निशानदही पर सेफ सिटी कैमरों से AI लर्निंग शुरू कर दी गई है। लेन मार्किंग, रिक्शा के लिए अलहदा जगह मुख्तस और स्टाफ निगरानी शुरू कर दी गई है। मुस्तकिल AI ट्रैफिक लर्निंग से रवानी में रुकावट की तमाम वजूहात का तदारुक किया जाएगा। महंगा आटा फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का बयान। कहते हैं, फ्लोर मिल्स और आटा डीलर्स की कड़ी निगरानी की जा रही है। डिपार्टमेंट ने 177 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नोटिफाई कर दिए हैं। ये होम डिपार्टमेंट ने इनको नोटिफाई किया और तमाम अथॉरिटीज़ उनके पास हैं कि वो मिलों पे जाके और जो आटा डीलर्स हैं उन पे जाके प्राइसेस और उसकी क्वालिटी को हर सूरत में इंश्योर करेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक वो प्राइसेस जो नोटिफाई किए हैं उनको इंश्योर करेंगे और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। और इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है, डेली बेसिस पे उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास जराइम की सूरत हाल, मुकदमात और मौसूल शुदा दरख्वास्तों समेत दीगर अमूर का जायजा लिया गया। SP सदर के दफ्तर में इजलास में सदर डिवीजन के SDPOs और SHO समेत दीगर मुतलका अफसरान शरीक हुए। जराइम की सूरत हाल, मौसूल शुदा दरख्वास्तों, हसास तनसीबात, तजारती मराकज़ और बैंकों की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। SP ने हवाई फायरिंग, असलहा की नुमाइश और पतंगबाजी की रोकथाम यकीनी बनाने, इश्तिहारी मुजरिमों और अदालती मफरूरान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म दिया। गयूर अहमद खान ने 15 की कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्स देने का मशवरा दिया। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट अकेडमी का अंडर 16 इंटर अकेडमी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल में लायंस ने फतह समेट ली। ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए टूर्नामेंट में 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें फॉल्कन्स, टैलेंट्स और लायंस ब्लूज़ ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच लायंस और ब्लूज़ के दरमियान खेला गया। लायंस ने पहले बैटिंग करते हुए 15 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर
111 रन बनाए। फरहान ने 43 गेंदों पर 57 और यूसुफ ने 18 गेंदों पर 21 रन बनाए। मध्य मुकाबल टीम की जानिब से हसनैन और बाजिल ने एक एक विकेट हासिल की। ब्लूज 11 हदफ के ताकुब में 76 रन बनाकर आउट हो गई। नुमान 18 गेंदों पर 25 रन बनाकर नुमायां रहे। फातेह टीम की जानिब से फरहान, सैफुल्लाह और अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। शाफत अली गोका ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि ग्रीन्स अकेडमी के सदर शुएब डार समेत दीगर भी मौजूद थे। इख्तितामी तकरीब के मौका पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए city42।